Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Okay, students, in today's revision topic, we will take nitrogen cycle. It's a very important topic according to NTSC purpose also. So, very first, nitrogen cycle. The nitrogen in the atmosphere is fixed into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria in the root nodules of leguminous plant and also during the lightning. Actually, what happened? Nitrogen cycle involves circulation of nitrogen in the biotic and abiotic and abiotic components of that biosphere. The elemental nitrogen of air is converted into simple molecule in the soil and water, and after that it enter into the plants and then into animals and forming complex molecules which finally break down to release nitrogen back into the atmosphere, right? We know nitrogen is an essential component of amino acid, and amino acid makes protein. Okay, and amino acid nitrogen also an essential component of nucleic acid and some enzymes which are essential structural and functional component of living system. Nitrogen is also a component of energy compounds such as ATPs in all organisms, right? The nitrate and ammonium ions present in the soil and water act as a principal source of nitrogen for green plants. If I'm talking about the processes involved in nitrogen cycle, so here is a mainly six process. First is biological nitrogen fixation. First one is biological. What happened in biological nitrogen fixation? As we know that in our atmosphere 78% nitrogen present. It cannot be used as such by plants and animals. It must be converted into biological acceptable forms. Okay, and for this here is a free living bacteria used like Azobacter, and symbiotic bacteria, Rhizobium. Okay, and blue green also take a free atmospheric nitrogen and convert it into ammonia, then further ammonia combined with organic acids to form amino acids, right? And the latter are used to form proteins, and this process in which these bacteria is used is known as biological nitrogen fixation. Okay, what happened in biological nitrogen fixation? A number of free living bacteria like Azobacter, Rhizobium, blue-green algae take the free atmospheric nitrogen and convert it into ammonia, then further ammonia combined with organic acid and form amino acids, right? And these amino acids further form proteins, and this is the biological nitrogen fixation. Okay, now second is atmospheric nitrogen fixation. What happened in atmospheric nitrogen fixation? Atmospheric nitrogen is converted into nitrogen oxides. Okay, sorry, it's not the nitrogen oxides, and nitrogen oxides by the electrical energy of lightning
and by natural ionizing radiations. These processes are respectively called electrochemical or photochemical fixation of nitrogen, right, in which atmospheric nitrogen converted into nitrogen oxides. Okay, and you know about the industrial nitrogen fixation? What happened in industrial nitrogen fixation? The chemical fertilizers factories produce ammonia. It's a man-made ammonia by combining hydrogen, atmospheric nitrogen under high pressure and temperature. They combine hydrogen or atmospheric nitrogen under high pressure and temperature, and this process is called industrial nitrogen fixation. Got it? Okay. Now, very first, when if you want to know about the nitrogen cycle, so if you have to understand some terms like nitrogen assimilation, ammonification, nitrification, and denitrification. Okay, very firstly, just see this. What is here? Is a nitrogen in the atmosphere is fixed into nitrogen compound in soil by nitrogen fixing bacteria in the root of nodules of leguminous plant and also during lightning. यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइट, एंड दीज नाइट्रोजन कंपाउंड आर टेकन अप बाय द प्लांट्स. इनको प्लांट ईट करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट्स दे ऑल्सो गेट प्रोटीन, उन्हें भी प्रोटीन मिलता है. व्हेन plants and animals die, bacteria convert this protein into nitrogen compound like nitrites and nitrates, and other bacteria convert this nitrogen compound back into the nitrogen in the atmosphere. यानी जब एनिमल्स और ये डेड हो जाते हैं तो वापस नाइट्रोजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड सम वाइटामिन्स. नाइट्रोजन सभी में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड्स में एंड वाइटामिन्स में. अब हम टर्म बाय टर्म देखेंगे. नाइट्रोजन ये आपके एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है ये डायग्राम, सो जस्ट चेक इट. वेरी फर्स्टली जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. Very first, nitrification. What is nitrification? Conversion of ammonia into nitrites and then into nitrates. Ammonia का conversion very first in nitrites and then nitrates. This is called nitrification. Okay, got it? What is nitrification? अमोनिया का नाइट्राइट्स में चेंज होना एंड देन नाइट्रेट में चेंज होना इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. और ये जो प्रोसेस होती है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होती है. ओके, सो जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट्स में चेंज करता है. अमोनिया को नाइट्राइट्स में चेंज करता है. नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स. ओके, and nitrobacter बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्राइट्स को यानी NO2 नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में चेंज करता है.
This is the nitrification. Nitrification process is done by nitrifying bacteria. What is nitrification? Conversion of ammonia into nitrites and then into nitrates. This is the nitrification. एंड इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर को, इसका नाइट्रिफिकेशन हुआ है. ओके, नाइट्रिफिकेशन में क्या बना? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स बना. देन जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन होके वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म में आने, इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस. नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में, फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, एक दूसरे के अपोजिट है ये. नाइट्रिफिकेशन में था कि अमोनिया, conversion of ammonia into nitrites and nitrates, and denitrification में conversion of nitrates salt into free nitrogen gas, वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाना, इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, नाउ ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट्स बनते हैं, देन वापस नाइट्रेट का एलिमेंटल फॉर्म में जब एनिमल्स और प्लांट डेड हो जाते हैं तो वापस नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट में पहुंचना इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. नाउ सी द सेकंड वन इज protoplasm in plants and protoplasm in animals. We included both here. जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो एनिमल्स, वेरी फर्स्ट एनिमल्स एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड आर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. अमोनियम कंपाउंड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सम फंगाई. ओके, एंड दे ऑल्सो डिकम्पोज द नाइट्रोजनस कंपाउंड, लाइक प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट इनटू अमोनियम कंपाउंड. वो अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, लाइक अमोनियम, फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बाय पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगाई इन अमोनियम कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. यानी डिकम्पोजिशन हो जाना नाइट्रोजनस वेस्ट का. जब प्लांट और एनिमल, लाइक एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, राइट, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है लाइक यूरिया एसिड, लाइक उनका यूरिन हो गया या फिर वेस्ट मटेरियल है, या फिर एनिमल और प्लांट डेड हो जाते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होना पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू उनको क्या कर देना, अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देना है. दिस इज द अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देना इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. यानी एनिमल्स और प्लांट का अमोनियम कंपाउंड यानी अमोनिया में चेंज हो जाना इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. देन अमोनिया से हमें पता है क्या बनेगा, नाइट्राइट्स बनेगा, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, राइट. और ये वापस क्या हो जाते हैं, हमारा एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन में पहुंच जाते हैं. या फिर नाइट्रेट्स क्या होता है, दोबारा जो प्लांट है वो क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स की फॉर्म में सोइल के थ्रू इसे वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं. चाहे कोई भी प्लांट है उसके रूट नोडुल्स हैं, जो रूट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में कंफर्टेबल है, नाइट्रेट की फॉर्म में कंफर्टेबल है तो प्लांट क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे. ओके, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी सिंपल. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी फर्स्ट एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाइट्रिफिकेशन होगा. नाइट्रिफिकेशन हो जाना इसका मतलब कि वो क्या होगा, पहले नाइट्राइट्स में नाइट्रेट्स में चेंज होगा. देन जब एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, यानी वापस अगेन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन. फ्री नाइट्रोजन में वापस ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गए. अब अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल की, अगर एनिमल्स के एक्सक्रिएटर है, वेस्ट मटेरियल है, उसका अमोनिया में चेंज हो जाना, या फिर डेड और
डेड प्लांट और एनिमल है उनमें अमोनिफिकेशन हो जाना, यानी कि वो अमोनियम कंपाउंड में चेंज हो जाना, इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देन अमोनिया से नाइट्राइट बनते हैं, नाइट्रेट बनेंगे, और प्लांट क्या करते हैं, इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स रूट्स कंफर्टेबल है क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन की फॉर्म में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एलिमेंटल फॉर्म में, रूट्स नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो नाइट्राइट्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करेंगे। दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाउ I think it's a complete nitrogen cycle. Students, if you have any kind of query related to this, so ask to me. Thank you and have a nice day.